long. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. अगर आपको साउंड आ रहा है तो प्लीज यस लिखिए कमेंट बॉक्स में. अगर आपको साउंड आ रहा है प्रॉपरली तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में. If you are getting my voice clearly, please write yes in the comment box. अगर आपको साउंड आ रहा है प्रॉपरली तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको सुनाई दे रहा है. राइट, तो देखो, GPAT प्रिपरेशन, वी आर discussing the series of lectures for GPAT preparation, and yesterday we have completed one lecture. I would like to take quick review of that lecture. कल थोड़ा सा साउंड का इशू था तो मैं थोड़ा सा एक 15 मिनट में उसका एक प्रीव्यू आपको दे देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए. ठीक है, तो welcome all GPAT Niper aspirants. First we will try to understand the induction of GPAT, and then we will also try to understand the preparation of Niper drug inspector and other exams. So yesterday we have seen what is meant by GPAT. GPAT क्या होता है कि kind of entrance exam, and it is a reflection of your competency in the pharmacy. It is a test to evaluate how much you are graduate in the pharmacy. The exam is conducted every year by different agencies. We have seen yesterday. कल देखा है कि एग्जाम क्या होता है. It is a gateway for masters and PhD courses. So फर्स्ट टाइम जब GPAT हुआ था तो किसने कंडक्ट किया था? GPAT के पहले गेट एग्जाम हुआ करता था, एंड फर्स्ट टाइम GPAT was conducted by महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा. After that it was shifted to AICT, after that NTA, and now it is conducted by National Board of Examination in the मेडिकल साइंसेस. तो GPAT के लिए कौन एलिजिबल है? बेसिकली GPAT इज फॉर 4th ईयर स्टूडेंट्स, बट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द 2nd ईयर एंड और एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर. तो बेसिकली GPAT 4th ईयर बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और उन्होंने ही देना चाहिए. 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने भी अगर प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हो, बट 2nd ईयर 1st ईयर के स्टूडेंट को एप्लीकेशन भी नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन करना है. ठीक है, सो वी हैव सीन यस्टरडे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GPAT exam is nothing but B.Pharm 4th year and 3rd year student can also apply, but no need to apply in the 2nd year, no need to think about the GPAT in the 1st year. We have already seen yesterday these things, but I would like to revise you. That's why I am taking again. What is importance of GPAT? What are the benefits of GPAT? We have already seen yesterday, but for your post graduation like M.pharm, MS, M.Tech, GPAT is very very important exam, and without GPAT also you can pursue your masters of pharmacy. अगर GPAT हो तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर भी आपको M.pharm मिल सकता है. आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के कारण नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ चुके हैं, और वहाँ पे आपको सीट मिल सकता है. बट if you are GPAT qualified, that means you are going to get some additional benefit, financial benefit from the government. You are going to get a stipend of 12.4 thousand per month for 2 years. आपको स्टाइपेंड मिलेगा. इवन PhD के लिए भी स्टाइपेंड मिलता है, तो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी होता है वो, लेकिन M.pharm के लिए स्टाइपेंड मिलता है. अभी 2-3 साल से स्टाइपेंड का इशू चल रहा था, वो भी अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, क्योंकि स्टाइपेंड का भी 2 इंस्टॉलमेंट आ चुका है बच्चों का, है ना. तो इनिशियली 1000 का आ गया, अभी भी परसों ही, कल ही आया आई थिंक. तो स्टाइपेंड भी रेगुलर हो रहा है आपका, तो उसका भी कोई इशू मुझे लगता है इन फ्यूचर नहीं रहेगा. तो M.pharm, MS, M.Tech ये जो कोर्सेज है, फार्मा MBA आपको नाइपर में मिलते हैं. नाइपर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च. तो आपको GPAT क्वालिफाई करने के बाद में नाइपर एग्जाम देना पड़ता है. यू बिकम एलिजिबल टू राइट द नाइपर आफ्टर क्वालिफाइंग GPAT, एंड इफ यू गेट रैंक इन द नाइपर यू विल गेट टॉप मोस्ट कॉलेजेस. जैसे इंजीनियरिंग में होता है कि IIT कॉलेजेस, वैसे ही फार्मेसी में बेस्ट कॉलेजेस जो होते हैं
वो नाइपर के कॉलेजेस होते हैं, जैसे नाइपर मोहाली होता है, अहमदाबाद होता है, हैदराबाद होता है ना, गुवाहाटी होता है, रायबरेली होता है, हाजीपुर होता है। तो इनमें से जो टॉप 3 है नाइपर, मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, तो ये तीनों में अगर एडमिशन चाहिए तो बिलो 500 600 रैंक अगर आता है तो मिल सकता है आपको। वहाँ पे MS, M.Tech, फार्मा MBA ये कोर्सेज होते हैं, M.pharm भी मिलता है, ठीक है। बट बाकी ऑल ओवर इंडिया M.pharm मिलेगा, ठीक है। So again, preparation of GPAT, I told you yesterday, preparation of GPAT is not only for masters. If you don't want to do masters, then lot of students they used to ask me, why should I prepare for GPAT? Actually, it is not only for masters. Okay, good evening, Nalikanta. No, it is not only for masters, but preparation of GPAT, everybody should prepare for GPAT, because आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, बच्चे प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे प्रॉपरली नॉलेज नहीं ले रहे। तो लॉट ऑफ कॉलेजेस दे आर ओपनिंग, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर पासिंग, बट दे आर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज, है ना। तो दैट्स व्हाई आई यूज टू रिकमेंड एवरीबडी शुड प्रिपेयर। कम से कम GPAT के बहाने से आपका रिविजन हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। दैट्स व्हाई अगेन, इफ यू आर क्वालिफाइड इन द GPAT, ऑब्वियसली विल बी प्रेफर्ड इन द इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, एंड ऑल्सो प्रिपरेशन इज हेल्पफुल फॉर अदर एग्जाम। बाकी एग्जाम के लिए भी GPAT का प्रिपरेशन आपको काम आता है ना। नाइपर एग्जाम हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट लेक्चरशिप, NIDCO एग्जाम होता है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का। अभी जैसे AIIMS का एग्जाम आने वाला है, अगर आपका GPAT का ही प्रिपरेशन अच्छा है और उससे अच्छा किया है आपने, तो AIIMS के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो AIIMS का जो 20% पार्ट है वही सिर्फ जाके देखना है 10-15 दिनों में, ईजिली आप रैंक ला सकते हो उसमें। तो मेरा कहने का वही मतलब होता है कि बस आपने GPAT का प्रिपरेशन अच्छा किया है तो आपके बाकी एग्जाम का भी प्रिपरेशन उसमें ही हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन GPAT में ही हो जाता है। तो GPAT क्या है कि इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ मदर ब्रांच। अगर GPAT का ही अच्छा करोगे तो बट ऑटोमेटिकली बाकी सब आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने कल देखा है, राइट। तो थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज नहीं करता मैं, राइट। सो यस्टरडे ये भी देखा है कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स भी अपन ने देखे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर अच्छा रैंक चाहिए कितना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करना है, अगर टॉप 10 में आना है तो कितना क्वेश्चन करना है, ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया है, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न के रिगार्डिंग भी अपन ने डिस्कस किया है कल, राइट। सो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू द स्ट्रेटजीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GPAT। तो स्ट्रेटजीज कितने होते हैं? 3 स्ट्रेटजीज होते हैं। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, बेसिक्स, अप्लाइड, है ना, बेसिक्स टू अप्लाइड, देन वन चैप्टर फ्रॉम बेसिक्स एंड देन फाइंड आउट द डिपेंडेंट चैप्टर्स ऑन केमिस्ट्री। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया है आपको स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो जैसे मैंने कल बोला था आपको, इफ यू आर इन अ थर्ड ईयर, इफ यू आर इन अ सेकंड ईयर एंड यू हैव टू रिवाइज योर बेसिक्स फर्स्ट। वाई आपको बेसिक्स क्यों करना है? पहले बेसिक मतलब आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस, अप्लाइड मतलब आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का सिलेबस। एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनक्लासिफाइड होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस। बेसिक मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट्स, दोज व्हिच आर इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर B.Pharm, so like anatomy, physiology and all that, they are the basics. Applied syllabus of your third year, fourth year, right. So if you are in a third year, revise your B.Pharm, revise your first year second year in 8 months, and the remaining time you have to give for applied. If you are in a second year, just try to revise first year and second year syllabus and try to focus on that one. No need to join the classes in the first year second year, okay. और ये सुन के भी बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है क्लासेस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करो, आपका ये सब मेरा काम है आपको बोलना अच्छा, जो भी आपके लिए सही है, आप, है ना। माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन यू, इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस और नॉट, बट आई डोंट रिकमेंड द क्लासेस फॉर दैट, राइट। नाउ I have told you why you have to read basic first. Again I will explain you why you have to read basics first, right. Now why you have to read basic first? So that was the first strategy of us. Suppose that you are reading a pharmaceutics, so pharmaceutics like industrial pharmacy and biopharmaceutics. अगर आप बायोफार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हो,
both subjects are based upon the pharmaceutical engineering, physical pharmacy and dispensing pharmacy. So if these three subjects are clear to you, you can understand the industrial pharmacy and biopharmaceutics. Okay? Likewise, that if you want to understand the medicinal chemistry analysis, so you have to go and read organic chemistry, because organic chemistry is a basis for medicinal chemistry and analysis. Likewise, that if you want to understand the pharmacology, so pharmacology is based upon three subjects known as a anatomy, physiology, biochemistry, microbiology and some part of pathology also. तो अगर आपको फार्माकोलॉजी समझना है तो आपको बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी ये पहले समझना चाहिए, तभी है ना वो आपको फार्माकोलॉजी समझना है, और वही बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड में होता है. ठीक है, तो आपको क्यों करना है ना, जैसे व्हाई यू हैव टू रीड बेसिक फर्स्ट. जैसे मैंने बोला है कि फार्माकोलॉजी के लिए ये तीन बेसिक है. जैसे ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल लेके. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाई बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अप्लाइड बाय टेकिंग वन एग्जांपल. सपोज यू आर रीडिंग वन चैप्टर नोन एज एंटी अल्सर ड्रग्स, अगर है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अपन. या आज एंटी अल्सर ड्रग का थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको. उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं जीपैट एग्जाम में, नाइपर एग्जाम में, तो इट विल बी अ वेरी गुड रिवीजन फॉर यू. सो माय रिक्वेस्ट विल बी ट्राई टू नोट डाउन द पॉइंट्स. आप कमेंट में एक्टिव रहिए और एक बार बोलिए मुझे इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली एंड यू आर एबल टू सी द स्लाइड्स आल्सो. यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, है ना. और आपको थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा. टुमारो विल टेक एंटी कैंसर, टुमारो विल टेक एंटी हाइपरटेंसिव, आफ्टर दैट विल टेक एंटी कैंसर ड्रग, है ना. चाहिए तो मैं एंटी डायबिटिक बाद में, है ना, तो डिपेंड करता है. 10-12 लेक्चर लूंगा मैं इसका. ठीक है, so I would like to take 10 lectures for the preparation, so that's why, है ना. Now suppose that you are reading anti-ulcer drugs, है ना, drugs used in the peptic ulcer. So first of all, what do you mean by peptic ulcer and what is the peptic ulcer disease? So peptic ulcer disease क्यों होता है? because of the excessive acid formation, right, है ना, because of the excessive acid formation. So peptic ulcer disease are there, है ना. There are lot of reasons for peptic ulcer. तो सबसे पहले क्या है कि आपको रीजन समझना है कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है. So there are few reasons like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So once you understand the reasons for disease, है ना, then go for the physiology, है ना, read the physiology. So before that, what is important from, जैसे for example, what is important from pharmacology, पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम फार्माकोलॉजी. अगर एक चैप्टर है फार्माकोलॉजी का, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सपोज यू आर रीडिंग एंटी अल्सर ड्रग्स, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट फॉर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्लासिफिकेशन, देन आफ्टर दैट mechanism of drug action, adverse effect, indication, contraindications, drug of choice, है ना, antidote, potent drug, है ना, like most potent, least potent, है ना, second generation, first generation, such kind of points they used to ask in a GPAT exam and NIPER exam, right. Now one of the very important task is there, how to remember the classification. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं. जैसे क्लासिफिकेशन, है ना, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज देयर, केमिकल क्लासिफिकेशन इज देयर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर देयर, बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर फ्यू क्लासिफिकेशन. याद कैसे करना है? देर इज नो नीड टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन. मैं बच्चों को बोलता हूँ जहाँ पे मेरे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे, यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर द क्लासिफिकेशन. इफ यू कैन क्लासीफाई द ड्रग बाय योर ओन, अगर आप खुद से क्लासेस कर सकते हो ड्रग के, इफ यू कैन मेक क्लासेस, बट हाउ यू कैन मेक द क्लासेस? फॉर दैट क्लासिफिकेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसीज, है ना. सो क्यों होता है, दीज आर द पर्टिकुलर रीजन. जैसे फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर डिसीज क्यों होता है? फर्स्ट रीजन इज अ
excessive acid formation. Second reason is a chronic use of NSAID. Third reason is a like a H. pylori infection. Fourth reason is a bad habit like a smoking, drinking, है ना. So fifth reason is a more aggressive factor and less defense factor, like that, है ना. So these are the reasons. Once you understand the reason, you have to understand the physiology. ठीक है. तो पहले रीजंस क्या है और फिजियोलॉजी क्या है ये समझना चाहिए आपको. मान लीजिए ये चैप्टर चल रहा है अपना, है ना, एंटी अल्सर ड्रग, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए, है ना. तो जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ. तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रैटेजी, है ना, समझना चाहिए कि आप मान लीजिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, है ना, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, देन what will be the strategies or what you can do for that ulcer. तो सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो क्या कर सकते हो आप. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, व्हाट यू कैन डू विद दैट अल्सर. तो पहले क्या है कि यू नो दैट वन ऑफ द फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक अल्सर इज क्या होता है कि एसिड. सो इफ देर इज एसिड इन द स्टमक, ऑब्वियसली दैट अल्सर विल इंक्रीज. सो फर्स्ट थिंग यू आर टू प्रिवेंट द अल्सर फ्रॉम फर्दर ग्रोथ. तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने पड़ेगा. तो यू कैन फर्स्ट टारगेट विल बी यू हैव टू न्यूट्रलाइज द एसिड, है ना, बाय यूजिंग एंटासिड. तो आपका एंटासिड क्या हो गया, दैट इज अ वन क्लास. एंटासिड विल बिकम अ वन क्लास, राइट. तो इन दैट आल्सो यू हैव टू एंटासिड्स. एक तो सिस्टेमिक होता है, एक तो नॉन सिस्टेमिक होता है. सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक, है ना. सो then another, है ना, what will be the another approach or another strategy. पहला तो हो गया you can neutralize the acid, but by neutralizing the acid you are just preventing the ulcer from further growth. So what about the acid formation? So you have to decrease the acid formation also. How you can decrease the acid formation? तो second strategy क्या होना चाहिए, decrease the secretion of acid. Decrease the secretion of acid. तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए आपका, यू कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय यूजिंग एंटासिड्स व्हिच आर ऑफ टू टाइप, है ना, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक. सेकंड, डिक्रीज, यू कैन डिक्रीज द एसिड फॉर्मेशन. हाउ यू कैन डिक्रीज द एसिड फॉर्मेशन, इफ यू नो द फिजियोलॉजी ऑफ दैट. इसके लिए आपको क्या चाहिए, फिजियोलॉजी, है ना. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, फिजियोलॉजी भी देखेंगे. वंस यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी यू विल फाइंड द टारगेट. आपको अगर फिजियोलॉजी समझ में आता है तो आपको टारगेट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे आपको, टारगेट्स. एंड एवरी टारगेट विल गिव यू वन क्लास. तो जितने भी टारगेट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, जितने भी टारगेट्स होंगे वो सब क्या देंगे आपको, क्लास देंगे. जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4-5 टारगेट मिल गए आपको, वो आपको देंगे क्लासेस. सो physiology, once you understand the physiology, then find out the targets and then target will give you class. ठीक है. Third, what you can do with that ulcer, you can protect that ulcer. You can protect that ulcer by, है ना, by forming a protection layer, है ना, that will give you one class. जैसे ulcer protective एक class होता है वो, है ना. Stimulating the healing, you can increase the healing of that ulcer by using ulcer healing drugs, है ना. And one of the reason for ulcer is nothing but the H. pylori infection. अगर infection reason है तो बाकी ड्रग क्या करेंगे, उसको सिर्फ, है ना, healing में मदद करेंगे. तो you have to kill that H. pylori. So H. pylori कैसे kill कर सकते हो आप, H. pylori can be killed by using antibiotics, so antibacterial drugs, right. So these are the some strategies. क्या है कि आपको सबसे पहले डिसीज के बारे में मालूम होना चाहिए. वंस यू नो द डिसीज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर डिसीज, एंड आफ्टर दैट strategies, you have to plan the strategies. Once you understand the strategies, है ना, once you understand the strategies and if you know the physiology, you can easily understand the classification. तो वैसे यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ आपको, राइट.
So for example, if you are having ulcer, so acid will be the predisposing factor or acid will be the aggressive factor. So you have to neutralize the acid by using antacids. There are two type of antacids, systemic जो सिस्टमिकली एब्सॉर्ब होता है और नॉन सिस्टमिक जो सिस्टमिकली एब्सॉर्ब नहीं होता है ना. तो आपको एग्जांपल मालूम होगा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सिस्टमिक एंटासिड है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट. नॉन सिस्टमिक में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है ना, देन सोडियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा. तो दीज आर द सम एंटासिड्स. ठीक है, उनके मैकेनिज्म, उनके एडवर्स इफेक्ट वो भी एग्जाम में आता है. which okay, capacity है ना, acid neutralizing capacity वो होता है. सेकंड थिंग, इफ यू नो द फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है भाई एसिड फॉर्मेशन का है ना. फिजियोलॉजी एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी देख लिया, सपोज इफ यू सी एनी फूड और इफ यू स्मेल एनी फूड और इफ यू टेस्ट और इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द फूड. अगर आपने खाने के बारे में सोचा है ना, आपके माइंड में चल रहा है कि घर में बहुत अच्छे सा खाना बना है, तो आपको दैट विल कॉज वाटरिंग इन द माउथ एज वेल एज इन द स्टमक. तो जैसे आपने कुछ फूड देख लिया या फिर स्मेल किया, खा लिया है ना, या फिर जस्ट उसके बारे में सोचा, क्या होता है कि सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को. तो इफ दैट स्टिमुलस थिंक दैट थॉट ऑफ फूड और दैट स्मेल और दैट टेस्ट और दैट साइट stimulate your brain to release some chemicals है ना. so brain will ना, brain को सिग्नल क्या आएगा कि सामने मेरे समोसे पड़े हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो ब्रेन समझ जाएगा आपका कि इसको अभी खाना है और खाने के लिए क्या चाहिए, एसिड चाहिए पेट में उसको पचाने के लिए. ऑब्वियसली once your brain gets signal from sight or thought or smell or taste, your brain will recognize that signal by afferent nerve and brain will signal to a stomach via vagus nerve. That is the largest cholinergic nerve of supplementary to your GIT. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, लार्जेस्ट कोलिनर्जिक नर्व सप्लाइडेड टू योर GIT, दैट इज नथिंग बट द वेगस नर्व. ये आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर वेगस नर्व, दैट इज एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन विल बी रिलीज है ना. तो मतलब जो फूड आपने देख लिया, ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन ने क्या किया, एसिटिलकोलिन रिलीज किया. एसिटिलकोलिन क्या किया, रिलीज किया. ठीक है, ब्रेन ने एसिटिलकोलिन रिलीज किया. नाउ अगेन, नाउ इन द स्टमक, आपका स्टमक जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द स्टमक. जैसे ये जो है दैट इज नोन एज अ पैराइटल सेल. दिस वन इज नोन एज अ पैराइटल सेल है ना. ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, दिस वन इज नोन एज अ पैराइटल सेल है ना. पैराइटल सेल तो उस टाइप के हिस्टामिनोसाइट और ECL सेल, इंटरक्रोमैफिन लाइक सेल भी होता है. वहाँ पे ग्लोबुलेट सेल भी होता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होता है, वहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल भी होता है ना. उसके सिक्रेशंस भी पूछे एग्जाम में. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल है ना, गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, हिस्टामाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरक्रोमैफिन लाइक सेल और हिस्टामिनोसाइट्स है ना. और एक होता है कि म्यूकोस इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोबुलेट सेल है ना. उस तरीके से क्वेश्चन था. पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल. तो दैट स्टिमुलस ऑफ फूड आल्सो रिलीजेस गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन भी बनता है यहाँ पे. और ये जो पैराइटल सेल है उसमें एसिड बनता है, और इसको एसिड बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सम आर द है ना. तो एसिटिलकोलिन हैज इट्स ओन रिसेप्टर ऑन अ पैराइटल सेल नोन एज M1 और M3 रिसेप्टर. वो स्टिमुलेट करता है प्रोटॉन पंप को टू रिलीज मोर एसिड. ये प्रोटॉन पंप यहाँ पे एक होता है ना. गैस्ट्रिन भी क्या करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द पैराइटल सेल, प्रोटॉन पंप ऑफ पैराइटल सेल बाय गैस्ट्रिन रिसेप्टर और कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर. मतलब एसिटिलकोलिन क्या करता है, एसिड बढ़ता है इन सिंपल सेंस. गैस्ट्रिन क्या करता है, एसिड बढ़ता है. उसी तरीके से हिस्टामाइन भी रिलीज होता है. हिस्टामाइन भी रिसेप्टर होता है उसका. हिस्टामाइन है इट्स ओन रिसेप्टर ऑन अ पैराइटल सेल. वो भी क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करता है. मतलब हिस्टामाइन इंक्रीजेस द एसिड है ना, एसिटिलकोलिन इंक्रीजेस द एसिड, गैस्ट्रिन इंक्रीजेस द एसिड. वहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है रिलीज, वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है एसिड.
that will inhibit the proton pump and inhibit the acid. There is one more factor known as the somatostatin, वो भी क्या करता है, एसिड को कम करता है. मतलब कहने का मतलब क्या है, what you will understand in the physiology. So you will understand in the physiology how acid is formed, what are the factors that increases the acid formation, what are the factors that decreases the acid formation, है ना. तो एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स है, सबसे अपने देखा है गैस्ट्रिन क्या करता है, एसिड इंक्रीज करता है, एसिटिलकोलिन एसिड इंक्रीज करता है, हिस्टामाइन एसिड इंक्रीज करता है, प्रोटॉन पंप एसिड इंक्रीज करता है ना. डिक्रीज कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज करता है, सोमेटोस्टैटिन डिक्रीज करता है. मतलब यहाँ पे आपको ये 4-5 चीजें पता चली. एसिड बनाने वाले कौन है, एसिड को बढ़ाने वाले कौन है. तो एसिड को बढ़ाने वाला है आपका एसिटिलकोलिन एक, दूसरा होता है हिस्टामाइन, तीसरा होता है गैस्ट्रिन, और चौथा होता है आपका प्रोटॉन पंप. ठीक है. तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द एसिड फॉर्मेशन. देयर आर सम फैक्टर व्हिच डिक्रीजेस द एसिड फॉर्मेशन, जैसे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, सोमेटोस्टैटिन हो गया. तो ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट द टारगेट्स फॉर योर क्लासिफिकेशन. यहाँ पे देखो, इफ यू नो द फिजियोलॉजी ऑफ एसिड फॉर्मेशन इन द स्टमक, है ना, एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, रोल ऑफ हिस्टामाइन, रोल ऑफ सोमेटोस्टैटिन, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटॉन पंप, कोलिनर्जिक सिस्टम, so you can understand the targets and that target will give you classification. जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है मैंने, कैसे है ना. ड्रग यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर, क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, सबसे पहले है ना, क्लासिफिकेशन क्या रहेगा आपका, सबसे पहले सपोज दैट यू हैव अल्सर, है ना. व्हाट यू कैन डू, पहला स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपका, यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड. हाउ यू कैन न्यूट्रलाइज दैट एसिड, बाय यूजिंग एंटासिड्स. ऑब्वियसली ये आपको आएगा. तो उसमें दो होता है ना, सम एंटासिड्स दे आर एब्सॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको बोलेंगे अपन सिस्टमिक एंटासिड, अपन उसको बोलेंगे सिस्टमिक एंटासिड. एग्जांपल रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, है ना. सम एंटासिड्स आर नॉट एब्सॉर्ब इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसोलेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना. तो ये नॉन सिस्टमिक, तो है ना. अगर सिस्टमिक एंटासिड है तो ऑब्वियसली वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में गया तो कुछ ना कुछ करेगा. तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड में जाकर क्या करता है, पीएच बढ़ाता है ब्लड का, यूरिन का. पीएच बढ़ गया नॉर्मल से तो उसको बोलेंगे अपन अल्कलोसिस. तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है सिस्टमिक अल्कलोसिस, है ना. लाइकवाइज दैट इनके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे जिसमें भी सोडियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, तो वो क्या करेंगे, सोडियम कैल्शियम लेवल बॉडी का बढ़ाएंगे. ऑब्वियसली दे कॉजेज द मिल्क अल्कली लाइक सिंड्रोम. तो ये दो एडवर्स इफेक्ट भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे है ना. तो सेकंड क्लास आता है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर और एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स, है ना. तो आपने देखा है कि हिस्टामाइन क्या करता है, बाय H2 रिसेप्टर एसिड को बढ़ाता है, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो आप, है ना. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि if you understand the factors which governs the acid formation, you can find out the target. जैसे देखो यहाँ पे एसिटिलकोलिन क्या करता है, यहाँ पे एसिटिलकोलिन increases the activity of proton pump and increases the acid. तो you know that एसिटिलकोलिन एसिड बढ़ाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप, एसिटिलकोलिन को ब्लॉक कर सकते हो. तो उसका एक क्लास मिल जाएगा आपको कि एंटी कोलिनर्जिक्स. तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग मतलब क्या, दे विल प्रिवेंट द एसिड फॉर्मेशन. और यहाँ पे एक क्लास मिलेगा आपको कौन सा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, है ना. तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट विल इंक्रीज द एसिड फॉर्मेशन, एंटागोनिस्ट विल डिक्रीज द एसिड फॉर्मेशन. तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, है ना, जैसे होता है आपका ऑक्सीफोनियम, है ना, प्रोपेंथैलिन, पायरेनजेपिन, टेलेनजेपिन. तो ये जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है उसमें भी तो क्लास है कि सिलेक्टिव मस्कर्निक ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव मस्कर्निक ब्लॉकर. तो नॉन सिलेक्टिव में आपका आता है ऑक्सीफोनियम एंड प्रोपेंथैलिन, है ना. टेलेनजेपिन, पायरेनजेपिन, दे आर नॉन एज सिलेक्टिव एमन ब्लॉकर. तो इसमें भी सब क्लास आ गया आपका. ठीक है. अभी दूसरा फैक्टर कौन सा है, हिस्टामाइन है. तो हिस्टामाइन बाय एक्टिंग ऑन H2 रिसेप्टर इंक्रीजेस द एसिड फॉर्मेशन, तो उसको ब्लॉक कर सकते हो कैसे,
बाय यूजिंग हिस्टामाइन 2 इनहिबिटर्स। तो हिस्टामाइन 2 इनहिबिटर्स कौन से है आपके, है ना, जैसे सभी डीन्स जो है आपके सिमेंटिडीन, रैंटिडीन, फैमोटिडीन, निजाटिडीन, है ना, तो ये सब क्या है कि हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे सिमेंटिडीन, रैंटिडीन, फैमोटिडीन, निजाटिडीन, तो दे विल इनहिबिट द अगेन एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, इनहिबिट द एसिड फॉर्मेशन, है ना। उनके भी एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो दो क्लास आपको मिल गए यहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटी हिस्टामिनिक। अभी और क्या फैक्टर्स है, जैसे प्रोटॉन पंप जो है वो क्या करता है, दैट इंक्रीज द एसिड फॉर्मेशन, तो इनहिबिट द प्रोटॉन पंप बाय यूजिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। थर्ड टारगेट, तो ड्रग्स के क्या नाम है, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, है ना, डेक्साराबिप्राजोल। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, आई वांट टू जस्ट से, इफ यू understand the physiology, you will find the targets, and that target will give you one class. I hope you are getting it, है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आपको ये जोल्स आएंगे, ओमेप्राजोल, रैंप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, एक्साटाइज, है ना। यहाँ पे और एक क्लास आएगा आपका, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, डिक्रीजेस द एसिड फॉर्मेशन, तो उसका एगोनिस्ट और एनालॉग, तो उसका मिसोप्रोस्टाल, लैंसनप्रोस्ट, ये यूज किया जाता है, ठीक है। वन मोर फैक्टर इज देयर, जैसे सोमेटोस्टैटिन, वो भी क्या है कि एसिड को कम करता है, तो उसमें भी आप एनालॉग यूज कर सकते हो, जैसे सोमेटोस्टैटिन एनालॉग ऑक्टेरोटाइड। तो यहाँ पे आपका, है ना, एक तो हो गया एंटासिड्स, उसमें दो क्लास हो गया, दूसरा क्लास हो गया आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर और एंटी सिक्रेटरी, तो उसमें आपका, है ना, 1 2 3 4 5, उसमें भी 5 क्लासेस हो गया, है ना, है ना। तो एंटासिड विल न्यूट्रलाइज द एसिड, एंटी सिक्रेटरी एजेंट विल प्रिवेंट द एसिड फॉर्मेशन, है ना। नाउ जो अल्सर है वो तो है, उसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो नया क्लास आएगा आपको, कौन सा, अल्सर प्रोटेक्टिव। तो न्यू क्लास विल बी देयर अल्सर protectives. So example is sucralfate and colloidal bismuth substrate. Sucralfate क्या होता है, it is a है ना, it is a aluminum salt of sulfated sucrose, aluminum salt of sulfated sucrose that will form a thin layer on a ulcer and will prevent the, है ना, prevent the further growth of ulcer. So ulcer protective. colloidal bismuth salt भी एक लेयर बनाता है ना, दैट्स व्हाई अल्सर प्रोटेक्टिव, है ना। तो अल्सर प्रोटेक्ट किया, बट उसको हील करना पड़ेगा, है ना, जस्ट थिंक करना पड़ेगा आपको। तो अल्सर हीलिंग एजेंट एक नया क्लास आएगा आपको, है ना, मतलब ये तो केटी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है, बट इससे भी और 2-3 क्लास में एक्स्ट्रा बोलूंगा आपको। इफ यू नो द फिजियोलॉजी, इफ यू नो द रीजंस, इफ यू नो, इफ यू कैन थिंक ऑन दैट, यू विल अंडरस्टैंड द क्लास, यू कैन रियली क्लासिफाई द, ठीक है। तो अल्सर हीलिंग एजेंट एक नया क्लास है, उसमें आपका आता है कार्बेनोजोलोन एंड आपका कार्बेनोक्सोलोन, है ना, कार्बेनोजोलोन वही आपका डिसराइजा ग्लैब्रा का डेरिवेटिव है। उसके बाद में लास्ट में जो एंटी एच पाइलोरी है, अगर इफ अल्सर इज बिकॉज ऑफ द पाइलोरी इन्फेक्शन, देन यू हैव टू किल दैट बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। सो एमोक्सिलिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रा साइक्लिन्स, these are the drugs, है ना। तो यहाँ पे देख लो आप, एक बार आपको मैं पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बोल देता हूँ यहाँ पे। तो जो पेप्टिक अल्सर डिसीज है, इसके रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि जो डिफेंसिव फैक्टर है, सो इनबैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव फैक्टर, तो है ना, इम्बैलेंस, एग्रेसिव फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। एग्रेसिव फैक्टर्स कौन है, एग्रेसिव फैक्टर मतलब जो एसिड को बढ़ाते हैं, जैसे एसिड, पेप्सिन, NSAID, H पाइलोरी। एंड प्रोटेक्टिव डिफेंसिव फैक्टर कौन से, म्यूकोस, बाइकार्बोनेट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्या होता है कि, है ना, वेगस स्टिमुलेशन, वेगस मतलब क्या, एसिटिलकोलिन, वही ना, फूड देखने के बाद जो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है,
that will act on a muscarinic receptor in a proton pump. Acetylcholine will also decrease the somatostatin, will decrease the gastrin, will increase the gastrin. ये सब है, ये फिजियोलॉजी है, हमने देखा है. क्लासिफिकेशन एक बार देखो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन मैंने बोला है क्लासिफिकेशन का. देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग. कैसे करना है क्लासिफाई? once you understand the physiology, you can understand the classification, है ना. You will understand the reasons for disease. Once you understand the reasons, once you understand the physiology, you can classify the drug by your own. उसके बाद में हर एक का क्लासिफिकेशन जो है, उसके बाद में वो ड्रग के बारे में, जैसे सिमेंटेडिन, तो सिमेंटेडिन है, that was the first drug that was used as a histamine to antagonist for ulcer. Okay, but इसके limitations है, it is no more used because it prevents the binding of testosterone to its receptor, so it can cause impotence in the male, है ना, impotence in the male. Then also it causes increase in the prolactin. जैसे सिमेंटेडिन होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, इसके कारण क्या होता है, तो इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन इन द मेल तो गायनेकोमास्टिया हो जाएगा. अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो उसमें गैलेक्टोरिया हो जाएगा, गैलेक्टोरिया हो जाएगा. ऑल्सो इट इज इट कैन कॉज बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करता है, इसके कारण सेडेशन, अदर एडवर्स इफेक्ट, है ना. बाद में ये कार्सिनोजेनिक भी होता है. बाद में रेंटिडीन, फैमोटिडीन, निजाटिडीन, टॉक्साटिडीन. तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट वाला ड्रग जो है वो फैमोटिडीन होता है. मोस्ट पोटेंट ड्रग अमॉन्ग दिस फैमोटिडीन, लीस्ट पोटेंट होता है सिमेंटिडीन. इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? ऑब्वियसली ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन, ये भी एक बार पूछा है एग्जाम. तो मतलब आपको वही करना है कि वंस यू अंडरस्टैंड द क्लासेस, यू हैव टू रीड इन द डिटेल्स अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंडिकेशन. ठीक है. सो टुमारो ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या देख लिया. So we have discussed strategies, है ना. So first strategy you can read basics and then go for applied. Second strategy you can take a chapter from basics, find out the interdependent chapter in applied and read the chemistry of same. And third strategy you can study the MCQs, है ना. So I also explain you why basics are important, है ना. So if you know, you know, why basics are important, so you are studying one chapter anti-ulcer drug, and for that what is important? Classification, mechanism, adverse effect, indication, contraindication, these things are important. Drug of choice, potency, etc. So if you want to classify the drug, you need to understand the reason for disease, you need to understand the physiology. Once you understand the physiology, you will get a targets. Once you got a target, that target will give you one class. That's why, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इससे भी ज़्यादा, ये हेरिडिटी पार्टी का है ना, इससे भी ज़्यादा क्लासेस मैं आपको बोल सकता हूँ. जैसे मैंने बोला है कि आपको फर्स्ट क्लास में भी एंटासिड, इसमें भी 2 सब क्लासेस. सेकंड क्लास क्या होगा? एंटी सिक्रेटरी एजेंट, इसमें क्या 6 क्लासेस. जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में यहाँ पे और आप सब क्लासेस कर सकते हो. देयर माइट बी 2 क्लास हो रहे, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव एम ब्लॉकर. नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर में आएगा आपका, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर में आएगा प्रोपेंथेलिन एंड ऑक्सीपोनिन, एंड सिलेक्टिव एम ब्लॉकर में आएगा पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन. ठीक है. और इसमें और एक क्लास आएगा आपका सोमेटोस्टैटिन एनालॉग, है ना. मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 क्लासेस दिए, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 क्लासेस दिए, मैं यहाँ पे आपको 5 बोला हूँ. बाद में अल्सर प्रोडक्टिव 6 क्लास, 7 क्लास एडिशनल बोला है मैंने, अल्सर हीलिंग एजेंट, है ना. और बाद में एक्सपांडेड ड्रग. ये सब क्या है?
वंस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एकदम स्लोली ले रहा हूँ मैं। कल अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, हाउ टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पूरा एंटी हाइपरटेंसिव फिजियोलॉजी, मतलब ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेन करूंगा और उसका क्लासिफिकेशन भी ना एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कल। ठीक है, तो विल सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। आपका अगर सपोर्ट रहता है तो लेंगे, तो फिर मुझे क्या है कि ना, इफ योर सपोर्ट इज देयर विल टेक। ओके, तो सी यू टुमारो।